بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ فرعون نے ایک عالیشان محل دریائے نیل کے کنارے بنایا ہوا تھا۔ اس محل کا نام عین الشمس تھا۔ اس پر ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کو کاٹ کر ایک نہر اس حوض پر جاری کی تھی اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے۔ اس طرح کے حوض کے کنارے سے عمارت کی بلندی سے اوپر نکل جاتے تھے اور 2 درخت حوض کے کنارے ایسے تھے کہ جن میں سے ایک میں سے زرد روغن نکلتا اور دوسرے میں سے سرخ روغن نکلتا، اور افادیت ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ روغن جس بیمار آدمی کو دیا جاتا وہ خدا کے فضل سے شفا یاب ہوتا۔ تب فرعون ملعون انہی درختوں کے سبب خدائی کا دعویٰ کرتا اور ربوبیت کی دلیل ان 2 درختوں سے دیتا کہ میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ پس اور بھی لوگ ان درختوں کی کرامت سے فرعون کی ربوبیت کے قائل ہو کر گمراہ ہوتے چلے گئے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوقچہ دریائے نیل میں بہتا ہوا اسی نہر کی طرف مڑ گیا جو فرعون نے اپنے محل کے حوض کی طرف بنائی ہوئی تھی۔ پس جناب فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ دونوں نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی آپ کی رضامندی سے نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا جس کی آنکھوں کے درمیان نور جگمگ کر رہا تھا۔ چونکہ ان دنوں فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری تھا، اس لیے بعض سرکشوں نے فرعون سے کہا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ممکن ہے قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈال دیا گیا ہو۔ یہ سن کر فرعون نے بچے کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون کو سمجھایا بجھایا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ علاوہ بری معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے آیا۔ تجھے جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ قطبی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی عورت انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب فرعون کے محل پر آئیں اور دیکھا کہ بہت ساری دائیاں کھڑی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی سے دودھ نہیں پی رہے اور نہ ہی خوش ہو رہے ہیں، چنانچہ جیسے ہی
आप अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम को गोद में लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त चुप हो गए। बाद उसके जब दूध पिलाया तो वो भी पीने लगे। बस वहाँ मौजूद सब दाइयाँ और बाकी लोग हैरान होकर देखने लगे। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने खुश होकर फिरौन और बाकी सबको बताना चाहा कि ये मेरा बेटा है और मैं ही इसकी माँ हूँ, इसलिए मेरे पास खुश होता है। लेकिन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से उनके दिल पर वही हुई कि ए खातून, खबरदार ये बात हरगिज किसी से ना कीजिए और किसी के सामने भी ये राज ना खोलना और ना बताना किसी को कि ये तुम्हारा बेटा है। बस आपकी वालिदा चुप रही। हामान मलऊन जो फिरौन का वजीर था वो भी इस वक्त वहीं मौजूद था। उसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की शबाहत से और दूसरा औरत के बच्चे को संभालने के करीने से कुछ शक और कयास किया, लिहाजा कहने लगा कि ए औरत, ये बच्चा तेरे ही बतन से मालूम होता है कि तुम्हारा इसे संभालने का सलीका अलग है। तब बीवी ने कहा कि नहीं, ये मेरे बतन से नहीं है और ना ही इसके बारे मुझे कुछ मालूम है। हाँ, ये मेरे दूध से बहुत खुश हुआ है, बस मैं चाहती हूँ कि मैं इसे बादशाह के लिए पालूं। तब फिरौन ने कहा कि अब से तुम ही इस बच्चे को दूध पिलाना और अपने दूध पिलाने की उजरत रोजाना 1 दिनार हमसे वसूल कर लिया करना। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा 30 दिनार उजरत महीना की फिरौन से लिया करती और अपने बच्चे को दूध पिलाती। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, फिर पहुंचा दिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ के ठंडी रहे, उसकी आंख और गम ना खाए और जान रखे कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर उसको नहीं जानते। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही पल रहे थे और आपकी वालिदा रोजाना आपको दूध पिलाने आती और देखकर आंखें और सीना ठंडा करती। इसी तरह कुछ अरसा गुजरा कि एक दिन फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खेलते और हाथ पांव मारते देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें अपनी गोद में उठाया और प्यार करने लगा। जब वो आपके मुंह पर बोसे दे रहा था तभी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हाथ से फिरौन की दाढ़ी पकड़ी और दूसरे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। तब मलऊन ने उसी वक्त गुस्से में आकर मार डालने का फैसला किया और कहा कि हो ना हो, यही वो बच्चा है जो मेरी मुमलिकत तबाह करेगा और जिसके हाथ से मेरी हुकूमत और तख्तो ताज का खात्मा होगा। और करीब था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करता। हजरत बीबी आसिया ने मलऊन को रोका और कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि वो एक बच्चा है और दूध पीते बच्चे ऐसे काम करते ही रहते हैं और उनमें इतनी समझ बूझ नहीं होती कि नफा नुकसान के बारे में समझ सकें और ना ही अच्छे बुरे की तमीज होती है। और जो तुम ख्याल करते हो कि ये बच्चा तुम्हारी मुमलिकत तबाह करेगा, तो ये कैसे मुमकिन है जबकि ये बच्चा बनी इसराइल का नहीं है, बल्कि ये तो कहीं और से दरिया में बहता हुआ आया है और बनी इसराइल के तमाम लड़कों को तो तुमने मार डाला है। सो इस बात पर इसे कत्ल ना करो, क्योंकि जो अमल इससे सरजद हुआ वो नासमझी और तिफोलियत की वजह से हुआ है, ना कि दांस्ता या जानबूझकर ऐसा किया है। तब फिरौन मलऊन ना माना और कहा कि मैं आजमाना चाहता हूँ कि आया कि ऐसा वाकई नासमझी में हुआ या ये बच्चा वही है जो मेरा मुल्क बर्बाद करेगा। बस आजमाइश के लिए हामान मलऊन ने 2 बड़े थाल मंगवाए, जिनमें से एक में याकूत सुर्ख या फूल थे और दूसरे में दहकते हुए कोयले। बस हामान ने कहा कि अगर ये कोयलों को पकड़ेगा तो मतलब इसका ये कि ये बनी इसराइल से नहीं है और जो इसने किया वो नासमझी और तिफोलियत के बाइस हुआ। और अगर दूसरे थाल से याकूत या फूल उठाए तो मतलब कि यही वो बच्चा है जो हमारा दुश्मन होगा और उसने दांस्ता ऐसा किया और इशारा दिया। बस जब थाल सामने रखे गए तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि याकूत उठाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म किया कि फौरन जाओ और मूसा का हाथ अंगारों की तरफ ले जाओ। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दहकता हुआ कोयला उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। तब उसकी वजह से आपके हाथ का कुछ हिस्सा और जबान जल गई, जिसकी वजह से बाद में आपकी जबान में लकनत पैदा हो गई और आपको साफ तरह से अपनी बात बयान करने में मुश्किल पेश आती। अलगर्ज जब ऐसा हुआ तो बीबी आसिया ने फिरौन से कहा कि मैं कहती थी कि बच्चे नासमझ होते हैं और बुरे भले की तमीज उनको नहीं होती।
और ना वो नफा नुकसान ही समझते हैं। बस तब फिरौन को उनकी बातों का यकीन हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया और प्यार किया और उसके बाद उनकी माँ के हवाले किया कि इन्हें दूध पिलाए और खुश करे। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी तरह फिरौन के महल में परवरिश पाने लगे। जब आप जरा बड़े हुए तो नौकर चाकर फिरौन को अपने साथ लेकर शहर में फिराया करते और लक़ब आपका पिसरे फिरौन यानी फिरौन का बेटा हुआ। अल्लाह ताला ने आपको बहुत छोटी उम्र से ही इल्म और हिकमत सिखा दी थी। चुनाचा फिरौन भी अक्सर आपको सामने बिठाकर लबेशीरी से इल्म और हिकमत की बातें सुना करते और बहुत प्यार किया करते। जब आपकी उम्र 20 बरस हुई तो फिरौन ने आपकी शादी बड़ी शान और शौकत से करवाई। इससे आपके 2 बेटे पैदा हुए। नाम उनके हरसून और बलका था। रिवायत है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास अरसा 30 बरस रहे और उसके बाद शहर मदाइन की तरफ हिजरत फरमाई, जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त फिरौन के महल से निकले और शहर में फिरते थे कि आपने 2 आदमियों को देखा जो आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। आप उनके करीब गए तो देखा कि उनमें से एक कुतबी आदमी था और ये फिरौन के बावर्ची खाने के सरदारों में से था और दूसरा बनी इसराइली आदमी था और नाम उसका सामरी था। पूछने पर पता चला कि दोनों में लकड़ियों की वजह से झगड़ा चल रहा है। इसराइली शख्स सामरी ने फरियाद की कि देखो ये कुतबी आदमी मुझ पर जुल्म कर रहा है। मैं ये लकड़ियां जंगल से काट कर लाया हूँ और इन्हें बेचकर मेरी गुजर बसर होती है, पर ये शख्स मुझसे ये लकड़ियां छीन रहा है। तब कुतबी शख्स ने कहा कि ये लकड़ियां तुम्हारे बाप फिरौन के बावर्ची खाने के लिए हैं। चूंकि इस सरजमीन मिस्र का रब फिरौन है, इसलिए यहाँ की हर चीज पर पहला हक उसका है और इसराइली चूंकि हमारे खिदमतगारों में से हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों अतराफ की बात सुनी तो आप समझ गए कि इसराइली हक पर है और कुतबी शख्स उस पर नाहक जुल्म कर रहा है और उसकी लकड़ियां छीन रहा है। तब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कुतबी शख्स से कहा, चूंकि तू नाहक जुल्म कर रहा है और इसराइली शख्स सच्चाई पर है, बस तू इसकी लकड़ियां उसके हवाले कर और जाने दे। लेकिन कुतबी शख्स ना माना और ना ही लकड़ियां वापस की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा। तब कुतबी कहने लगा कि आप हमारे रब फिरौन के पिसर हैं और इसराइली हमारे खिदमतगार, सो इनकी हर चीज पर हमारा हक है और अगर आप इनका साथ देंगे तो इसकी शिकायत मैं फिरौन को करूंगा। और लकड़ियां छोड़ने से इनकारी हुआ। तब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा बहुत आया और आपने एक घूसा यानी मुक्का उस कुतबी के सीने पर ऐसा मारा कि वो जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। पर जब आपने ऐसा देखा तो बड़े परेशान हुए और तब वहाँ उन तीनों के सिवा और कोई न था और ना किसी को मालूम ही पड़ा जज़ल्ला कि वो सब जानने वाला है। बस बाद इसके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस इसराइली शख्स सामरी को वहाँ से भगा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कोई कुतबी तुझे यहाँ इस मरे हुए आदमी के पास देख ले और तू नाहक धर लिया जाए। और खुद आपने बारगाहे इलाही में उस कुतबी को मार डालने के सबब अपने गुनाह के लिए तौबा की और अल्लाह से रो रो कर उस कत्ल की माफी मांगी। बस अल्लाह ने आपका गुनाह बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। चुनांचे इरशाद है, तर्जुमा, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ऐ रब, मेरे बुरा किया मैंने अपनी जान का, सो बख्श मुझको। बस बख्श दिया उसे, बेशक वही है बख्शने वाला मेहरबान। बाद उसके वहाँ चंद कुतबी आए तो अपने सरदार को मरा हुआ पाया, लिहाजा उन्होंने उसकी लाश वहाँ से उठाई और फिरौन को इसके बारे में खबर पहुँचाई। तब फिरौन ने हुक्म जारी किया कि कत्ल करने वाले को मेरे सामने पेश किया जाए। पर सबों ने बहेतरा ढूंढा लेकिन उसका कातिल ना मिल सका। कुतबी को ले जाकर दफन किया। रिवायत है कि अगरचा फिरौन काफिर था लेकिन जालिम व मजलूम का अदल व इंसाफ खूब किया करता था। बस उस कुतबी के कातिल को ना पाकर चुप रहा। दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और डरते हुए घर से निकले और जब आप शहर में पहुंचे तो देखा कि फिर एक कुतबी उसी इसराइली शख्स सामरी को मार रहा है। तब सामरी ने आपको देखा तो दोबारा फरियाद की। तब हजरत मूसा सामरी से गुस्सा हुए और फरमाया, बेशक तू सरीह गुमराह है, हर रोज जानबूझकर जालिमों से उलझता है और मुझे लड़वाता है। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था कि कुतबी जालिम है
اور فرعون کی پشت پناہی میں لوگوں پر بے جا ظلم ڈھاتے ہیں۔ لیکن سامری پر غصہ اس وجہ سے آیا کہ وہ جانتا تھا کہ قطبی ظالم ہے، پھر بھی ان سے الجھتا تھا اور ان سے لڑنے کی اس میں خود اختیار طاقت ہرگز نہ تھی، بس دوسروں کو لڑوا دیا کرتا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے پھر سے لڑوانا چاہتا ہے، اور جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر، یعنی قریب تھے کہ غصے میں اسے مارتے۔ سامری بول اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا چاہتا ہے تو کہ میرا بھی خون کرے، جیسا کہ کل تو نے ایک قطبی شخص کا خون ناحق کیا، اور تو چاہتا ہے کہ ملک میں زبردستی کرتا پھرے، اور تو ہرگز نہیں چاہتا کہ قطبی اور اسرائیلی مل بیٹھیں، یعنی تو ہم میں ملاپ کروانے کی بجائے لڑائی کروانے والا ہے۔ بس جب دوسرے قطبی شخص نے یہ باتیں سنی تو سمجھ گیا کہ کل والا قتل جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ بس وہ وہاں سے فرعون کے محل کی طرف دوڑا تاکہ اسے جا کر اس سب اور کل والے قتل کی بات بتا سکے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ چنانچہ اس اسرائیلی شخص کے بتانے کی وجہ سے جو قتل کل تک چھپا ہوا تھا، آج سب کو علم ہو گیا کہ قاتل کون ہے۔ پس وہ قطبی شخص دوڑا اور اس نے مرنے والے کے گھر والوں کے علاوہ فرعون سے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ کل مرنے والے سردار کا قتل جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑے، اور آپ ڈرے ہوئے بھی تھے اس وجہ سے کہ فرعون بھلے ہی ظالم کافر ہے، لیکن وہ عدل و انصاف سب کے ساتھ کرتا ہے، اور قاتل چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ لازمی سزا دے گا۔ اور آپ کی ماں اور حضرت آسیہ کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ جب اس قطبی شخص نے دربار میں فریاد گزاری اور فرعون کو قاتل کے متعلق مکمل حقائق سے آگاہ کیا اور اسرائیلی شخص کی بات کا تذکرہ کیا، تب فرعون نے مجلس شورا بلائی اور کہا کہ مجھے مشورہ درکار ہے کہ اس بارے کیا کرنا چاہیے کہ موسیٰ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس نے ایک شخص کا ناحق قتل کیا ہے۔ اب بتاؤ اس معاملے کا کیا حل ہونا چاہیے؟ تب حامان ملعون، جو کہ شروع سے ہی آپ کے خلاف تھا، اس نے کہا کہ بے شک موسیٰ فرعون کا بیٹا ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس نے قتل ناحق کیا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ موسیٰ سے اس مرنے والے کا قصاص لیا جائے، جو کہ انصاف کی روح سے موسیٰ علیہ السلام کا قتل بنتا ہے۔ تب فرعون نے حکم جاری کیا کہ موسیٰ کو پکڑ کر پیش کیا جائے تاکہ اس سے قطبی شخص کے قتل کا قصاص لیا جائے۔ تب وہاں ایک شخص ایسا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا اور سچا پکا مومن اور مسلمان تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ فرعون کا چچیرا بھائی تھا اور نیک مومن شخص تھا۔ بس وہ شخص وہاں سے دوڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر کے قریب جا لیا اور کہا کہ اے موسیٰ، فرعون تجھے مار ڈالنے کے در پر ہے اور تم سے اس قطبی شخص کا قصاص لینا چاہتا ہے، بس تم ابھی شہر سے نکل جاؤ، تبھی بچ سکو گے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے تمہیں یہ خبر دینے کے لیے وہاں سے دوڑا آ رہا ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ایک شخص شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا آیا اور کہا اے موسیٰ، دربار والے مشوریت کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھے مار ڈالیں، تو نکل جا یہاں سے، میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اور اہل خانہ کو چھوڑ کر شہر مصر سے ڈرتے ہوئے نکلے، اور اس بارے میں بھی خبر لیتے رہتے کہ کوئی ان کے پیچھے تو نہیں آ رہا جو انہیں پکڑ کر فرعون کے آگے پیش کرے، جو اسے قتل کے جرم میں قتل کروانے پر تلا ہوا ہے۔ بس آپ اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے جا رہے تھے، اے اللہ مجھے ان ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما اور دکھا مجھے راہ جو سیدھی ہو، کیونکہ آپ ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور پکڑ کر فرعون کو پیش نہ کر دے، بغیر کوئی زاد راہ لیے اور بنا کسی کو خبر کیے شہر مصر سے نکل آئے تھے۔ اب آگے دور تک صرف صحرا ہی صحرا تھا اور کوئی راہ اس میں کسی طرف نظر نہ آتا تھا۔ چنانچہ آپ اللہ سے اپنی خیریت اور سیدھے راستے کی دعا کرتے ہوئے چل رہے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو شہر مدین کی راہ سجھائی۔ اور بعضوں نے کہا کہ مصر شہر سے مدین کا راستہ 10 کوس تھا، اور بعض نے کہا کہ 7 دن رات
में आप शहर मदीन पहुँचे और बाज़ रिवायात के मुताबिक 40 दिन का तज़किरा भी मिलता है, वल्लाह इल्म। बस जनाब मूसा अलैहिस्सलाम शहर मिस्र से निकले और सीधे मदीन पहुँचे। जब आप मदीन के मैदान में पहुँचे तो देखा वहाँ कुछ लोग एक कुएं पर अपनी बकरियों और दूसरे जानवर मवेशियों को पानी पिला रहे हैं। बस आपने दिल में ख्याल किया कि शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए किसी बारे में। बस जब उनके करीब पहुंचे तो देखा कि पानी पिलाने वालों से थोड़ा हटकर 2 लड़कियां अपनी दुबली और कमजोर बकरियां लिए शर्मो हया के साथ खड़ी हैं। बस जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह से क्यों खड़ी हो? बस कहने लगी कि हम यहाँ अपनी बकरियों को पानी पिलाने के वास्ते आई हैं, लेकिन ये कुएं का डोल पानी से भरकर खींचने से कासिर है और ना हम में इतनी ताकत है कि कुएं के मुंह पर रखे पत्थर को हटा सके कि उसे हटाने के लिए 40 मर्दों की ताकत दरकार है और हमारा कोई भाई नहीं जो हमारे लिए ये करे और हमारा बाप ज़ईफुल उमर और नाबीना है। सो हम इस इंतजार में खड़ी हैं कि जब ये चरवाहे अपने जानवर मवेशियों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो फिर इसके बाद जो पानी बच जाएगा हम अपनी बकरियों को पिला लेंगे और हम हर रोज इसी तरह करती हैं। बस जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आगे बढ़े और कुएं के सिरे पर रखा हुआ पत्थर हटाया जो चरवाहे जाते वक्त दोबारा कुएं के मुंह पर रख गए थे। उसके बाद आपने डोल भर भर कर पानी निकालना शुरू किया। बस उन लड़कियों की बकरियों ने उस दिन सैर होकर पानी पिया। इसके बाद वो लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर शर्मो हया के साथ चली गईं और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि राह के थके मांदे और भूखे प्यासे थे, आप वहीं करीब एक दरख्त के साए में जा लेटे और अल्लाह ताला से अपनी हालत के बारे बयान किया और मनाजात मांगी कि इलाही मुझे कुछ खाने को दे कि मैं भूखा हूँ। हक ताला फरमाता है, तर्जमा, बस इसने पिला दिया उन जानवरों को, फिर हटकर आया छाओं की तरफ, बोला ऐ रब मेरे, तूने जो उतारी है मेरी तरफ अच्छी चीज में से उसका मोहताज हूँ। चुनाचा उन लड़कियों के रुखसत होने के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के साए में जा बैठे और अल्लाह ताला से अपनी भूख के बारे बयान किया और खाने के लिए दुआ फरमाई कि लिहाजा आपकी दुआ कबूल हुई। बस उन लड़कियों ने कि जिनके बारे मशहूर रिवायत है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, घर जाकर हजरत शुएब से इस बारे में जिक्र किया कि आज मैदान में एक नौजवान ऐसा कुव्वत और रहम वाला देखा और ताकत ऐसी कि उस अकेले ने कुएं पर रखे पत्थर को हटाया कि जिसे हटाने के लिए तमाम मैदान के चरवाहे मिलकर जोर लगाते हैं और नेक रहम दिल के बिना किसी सिले या उजरत के हमारी बकरियों के लिए कुएं से डोल भर भर पानी निकाला और आज जैसे सैर होकर बकरियों ने पानी पिया ऐसे पहले कभी ना पी सकी और पानी पिलाने के बाद वो एक दरख्त के साए में जा बैठा। तब हजरत शुएब ने फरमाया कि जल्दी जाओ और उसे बुला कर लाओ, इससे पहले कि वो कहीं चला जाए। उसे साथ ले आओ ताकि हम उसे उजरत अदा कर सकें उसके काम के लिए जो उसने किया, क्योंकि अल्लाह ताला हक रखने वालों को मुआफ नहीं करता। चुनाचा उनमें से बड़ी लड़की कि जिसका नाम सुफूरा था, वो शर्म से चलती हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेने गई और आके कहा, चलो तुमको मेरा बाप बुलाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो मुझे किस बात के लिए बुलाते हैं। तब हजरत शुएब की बेटी ने कहा कि हमने उनसे आपके बारे में जिक्र किया कि आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया, बस आपको उस वास्ते बुलाते हैं कि आपको उस काम के करने की उजरत अदा करें और अल्लाह के बंदे हक रखना किसी का पसंद नहीं करते। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी चूंकि 7 रात दिन के भूखे थे और सफर भी किया था, तो उस लड़की के साथ चले कि मजदूरी की उजरत में खाना तलब कर लूंगा। चुनाचा वहाँ से दोनों चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे थे और बीबी आगे चली जाती थी। थोड़ा फासला तय भी ना हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़की से कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ, और ये इस वजह से कि तुम्हारे पीछे चलने से मेरी नजर एक गैर महरम औरत के पाँव पर पड़ने से गुनाह होता है। तब सुफूरा ने कहा कि चूंकि आपको हमारे घर का रास्ता पता नहीं है, इस वास्ते मेरा आगे चलना जरूरी है ताकि आपको रास्ता दिखा सकूं। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं आगे चलता हूँ, आप मुझसे पीछे चलो और मुझे रास्ता बता देना जब मैं रास्ते से भटकने लगूं। इस बात से सुफूरा ने जाना कि ये कोई बहुत नेक पारसा मर्द है। चुनाचा वो दोनों इसी तरह चलते हुए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश किया। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और आपको अपने करीब बिठा लिया और आपका हाल अहवाल पूछा। तब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में कुछ हाल गुजरा सब बयान फरमाया और मिस्र में फिरौन के बारे में और बनी इस्राइल के अहवाल और कुतबी के कत्ल और वहां से अपनी हिजरत के बारे सब कुछ बयान किया। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ अंदेशा ना करो, अल्लाह ने तुम्हें जालिमों से निजात दी। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सुफूरा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर आई थी और करीब ही बैठी सब सुन रही थी। जब उन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल सुने तो अपने बाप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अब्बा जान, आप इसे नौकर क्यों नहीं रख लेते, और ये बेहतर नौकर है जैसा कि आप रखना चाहते हैं, जोर आवर भी है और अमानतदार भी और नेक पारसा भी। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए बेटी, तुमने इसका जोर और ताकत तो देखी है कि कुएं का पत्थर हटाया और अकेले पानी से भरे डोल कुएं से निकाले, पर उसकी अमानतदारी और पारसाई क्यों कर मालूम हुई। तब बीबी सुफूरा ने आपसे रास्ते की बात बयान फरमाई और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू का तज़किरा बयान किया। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तस्लीम किया कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वाकई में नेक और अमानतदार हैं और बेटी के दिल का हाल भी समझा कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में इनकी नेक नियति और रहम दिली के जज्बे की वजह से दिलचस्पी रखती हैं।